from some sort of physical disability. What has happened that he used to be a soldier when he was a when he was young man, and he has gone to fight in a war, and one of his legs was blown off in a war. However, I've also told you that they have very different attitude, very different perspective towards the world. This child, Derry, was very, very negative, very, very pessimistic, and we cannot blame him also. I'll explain later that why we cannot blame him. On the other hand, Mr. Lamb was very, very positive, very, very optimistic. And this child, Derry, has come to his garden. He thought that, the garden was vacant, nobody was there, and he wanted to, spend some, lonely time there. He did not want to interact with people. So he thought that he would go in the garden and he would, sit there alone. But he found that Mr. Lamb was there. And then they started a conversation, and Mr. Lamb tried to change the, perspective. He tried to, make him positive. He tried to show him the other side of the world, because Derry was always looking at the negative sides. He was always looking at the negative side of the world. And Mr. Lamb knew that the world is both beautiful as well as ugly. And Derry was looking at the ugly side of the world. So he tried to, show him the beautiful side of the world also. And he was trying to change his attitude. He was trying to broaden his horizon so that he can look to the other side also. So he was trying, and we have done till that in the first part. So let's continue the second part. And somehow he has been able to do it also. Mr. Lamb has been able to change the perspective of Derry also. थोड़ा बहुत चेंज कर लिए थे, धीरे धीरे वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था. अभी तक वो हमेशा नेगेटिव बात करता था कि नहीं, उसको लोग, ही हेट्स पीपल, उसको घर वाले उसको अपने पसंद नहीं है, उसको लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है. बट धीरे धीरे जब मिस्टर लैम ने समझाना शुरू किया, तब जाके थोड़ा बहुत चेंज उसमें विजिबल होने लगा था. तो फ्रॉम दैट लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट. जैसे मैंने बताया कि देयर वाज अ स्लाइट चेंज इन हिज एटीट्यूड. ठीक है, ही टोल्ड कि ही आल्सो वांट्स टू हैव समथिंग. वो ऐसे ही नहीं जीना चाहता, वो भी चाहता है कि उसका क्या हो, अपना एक घर, जैसा इसका घर था, मिस्टर लैम का घर था. रिमेंबर उनका घर कैसा था, कोई विंडोज पे कोई कर्टन्स नहीं होता था, गेट कभी बंद नहीं होता था. वो बोलते थे ही डजंट लाइक टू सेपरेट थिंग्स. वो चाहते थे अगर लाइट है तो लाइट है, डार्कनेस है तो डार्कनेस सेंटर उनके रूम में, कोई भी उनके घर में आ जाए कोई दिक्कत नहीं. सो ही वाज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड डेरी लाइक कि मेरे को भी ऐसा ही चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी घर ऐसा ही, मेरा खुद का घर हो. And then he tells that he likes to hear the pitter patter sound of the rain. I think pitter patter all you know, जो rain drop गिरने का आवाज आता है, that is called pitter patter. So he's calling, he loves that sound. Now see, he is telling that what he likes. अभी तक वो क्या बता रहा था कि क्या उसे पसंद नहीं, कि लोग पसंद नहीं है, उसे अपना फेस पसंद नहीं है, एसिड ने उसको बर्बाद कर दिया है, he's talking about all these things. And एसिड वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला एसिड नहीं, रियल वाला एसिड. So Labs tell him, कि if you like this house so much, you can come whenever you want to come. You can come to my house. I'll never. My gate is always open. You are always welcome. और बोला हाँ वो तो ठीक है, but मेरा घर होता, प्लस सपोज करो मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे घर ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारे घर बहुत सारे लोग आके बैठे रहते हैं. Suppose if I come, they look at my face and they get scared. फिर तो मेरी वजह से क्या होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, वो लोग चले जाएंगे. तो मिस्टर लैम इज लाइक सी दैट इज देयर प्रॉब्लम. ठीक है, दोनों को रिस्क लेगा, तुम्हें भी रिस्क लेना होगा. पहले आकर तो देखो कि क्या होता है, सच में लोग भागते हैं नहीं भागते हैं, वो रिस्क तुमको लेना पड़ेगा. और लोगों को भी ये रिस्क लेना पड़ेगा कि वो तुमको सिर्फ फेस की वजह से जज ना करे, तुमको तुम्हारे बाकी तुम्हारा बाकी भी जो एस्पेक्ट है, तुम्हारा बिहेवियर है, तुम्हारा नॉलेज है, तुम कैसे, तुम्हारा मोरल लेवल है, कि कैसे तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो लोगों को वो रिस्क लेना पड़ेगा. So this is a very very important point. He tells him a story also. He telling कि दुनिया में ना लाइफ में जीने के लिए ना रिस्क तो लेना पड़ेगा. तुम सोचो कि बिना रिस्क के तुम कुछ भी कर लो, बहुत अच्छा लाइफ जी लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल. हर चीज में हमने रिस्क लेना. जैसे सपोज इफ यू सेलेक्ट ए स्कूल, if you select a college, you don't know that how that college is going to be, how that experience is going to be, but तुम कैलकुलेट करके तुम वो क्या कर देखे, रिस्क लेते हो, ठीक है कि ये वाला शायद अच्छा होगा. तो हर जगह तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तुम सोचते हो कि अच्छा ये कंपनी बहुत अच्छा होगा, तो देयर आल्सो इट इज अ रिस्क. तुम सोचते नहीं मैं जॉब करूंगी नहीं, क्या पता अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू टेक रिस्क्स इन योर लाइफ.
And then he tells him a story. It's a beautiful story. He tells that there was this person. He was very very afraid. He thought कि he might die. If he will go outside, he will die. Suppose वो बाहर जाता क्या होता है? His legs slip on a banana skin. Suppose some vehicle comes and उसको मार देता है. सपोज करो कि वो इमेजिन, वो सोचता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं रोड पे गिर सकता हूँ, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आके मुझे मार सकता है. सपोज ही मीट्स अ गर्ल आल्सो एंड द गर्ल ब्रेक्स हिज हार्ट, और बेचारे को हार्ट अटैक आ जाए. तो बोल रहा है कि नहीं, दुनिया बाहर बहुत रिस्की है, बाहर में नहीं जा सकता. मिस्टर लैम ये स्टोरी सुना रहे कि एक ऐसा आदमी था जो बहुत डरता था, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो सोचता कि बाहर जाऊंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा. सो व्हाट ही डज, ही गोज टू हिज रूम एंड ही लॉक्स हिमसेल्फ. बोलता है और अपने सर्वेंट्स को बोलता है कि नहीं, तुम ही लोग खाना वाना जो भी है सब लोग तुम लोग लाकर मेरे को प्रोवाइड करोगे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, आई विल स्टे हियर. ठीक है. तो हमें क्या लगेगा कि इज रिस्क फ्री, उसको तो बाहर वो किसी से मिल नहीं रहा है, कुछ होने वाला नहीं. तो डेरी पूछता तो क्या होता है, वो जिंदा रहता है ना, बच जाता है ना, वो कभी नहीं मरता ना. तो बोलता नहीं, मर जाता है. मिस्टर लैम बता रहा है कि नहीं, वो तो मर जाता है. कि हाउ, डेरी पूछता कैसे मर गया, वो तो मतलब ही वाज रिस्क फ्री ना. तो मिस्टर लैम नहीं, एक्चुअली क्या था ना, देयर वाज अ बिग पिक्चर इन हिज रूम. So when he was sleeping, or I think it's not given whether he was sleeping or sitting. So whatever he was there in the room. There was this big picture, and the picture fell on his head, and he died. And Derry starts to laugh very very loudly. You look at that stupid person. बेचारा इतना मतलब प्रिपरेशन किया कि बाहर नहीं जाएगा, बाहर बहुत रिस्क है, और घर ही में मर गया. He died in his own house. So basically the story seems to be very funny, but what he wants to convey कि हर जगह रिस्क है. तुम कहीं भी रहो, तुम सोचो कि नहीं यहाँ पे तुम सेफ हो. इट्स नॉट लाइक दैट. रिस्क तो तुमको लेना पड़ेगा. सी ना, रिस्क एंड प्रिकॉशंस, समझदार होना और रिस्क लेना. ऐसा नहीं कि तुम जाके बीच रोड में चलोगे, नहीं मैं तो सर रिस्क लूंगा, सर बोले हैं कि नहीं रिस्क लेना चाहिए. नो नो नो, दैट नॉट दैट. रिस्क लो, स्टूपिड मत बनो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू क्लेम कि लाइफ में कुछ रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा. एंड सो व्हाट इज ट्राइंग टू टेल कि तुमको भी रिस्क लेना पड़ेगा. इंटरेक्ट विद पीपल. ठीक है. It's not, maybe they will turn out to be a good person, maybe they will judge you only because of your faith, but you have to take that risk. So here's what he is trying to convey. And then he starts. Now Derry has changed a little bit. Now instead of talking negative, he's telling acha, he's showing concern about Mr. Lamb. Mr. Lamb has told you bole the na ki it's a beautiful day, I want to spend my day outside. No. And so, and he's telling that he was going to pluck crab apples because he used to make jelly. This is how he used to spend his days, making crab apples and all those stuff. So he's telling you, but you have only one leg. एक leg तो तुम्हारा 3 का है. तो how you will climb the ladder? No, एक पैर से. Just imagine कि तुम एक पैर से ladder पे चढ़ रहे. You won't be able to make balance. So there is like कि you might fall down from the ladder. You might break your neck. You might die. No. So Mr. Lamb is telling, no. He's telling that no, it's not a big deal. I have practiced a lot. Okay. I have mastered many things in my life, and this is one of them. Plus, I have got to take the risk. ये risk तो मेरे को लेना पड़ेगा. Because I don't have anyone to. अगर तुम चाहो तो help कर सकते हो. I told you in the beginning only. अगर तुम चाहो तो मेरा help करो. But there is like नहीं, if I will stay, it will take some time. My mother will be worried. My mother will. I have to inform my mother. तो मिस्टर लैम टेलिंग, हाँ तो चले जाओ, फटाफट जाओ और इन्फॉर्म करके आ जाओ. तुम इन्फॉर्म कर दो कि यू आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम इन माय गार्डन. ठीक है. एंड देयर इज लाइक नहीं, वो लोग बहुत फस करते हैं. नाउ रिमेंबर द डिफरेंस. ही इज टेलिंग दे फस, एल्डर पीपल फस. फस मतलब फालतू बात, मतलब छोटा छोटा बात को बड़ा सा बना देते हैं. हर छोटा बात पे खिचपिच करते हैं. तो ये बोलेंगे कि मैं जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वो नौटंकी होगा घर पे कि क्यों लेट हुआ, कहाँ था, क्यों नहीं आया, टाइम पे क्यों नहीं आया. Just like typical Indian parents. तो ही लाइक कि बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाए. तो मिस्टर लैम इज टेलिंग no, they don't fuss. They are worried about you. Of course, you are a small child. They will be worried about you. ठीक है. तो फर्स्ट मत बोलो. They are worried. They are simply worried. तुम भी जब बड़े होगे, तुम भी फैमिली होगा, तो you will be also worried about your kids. He telling, but if they will be worried, just go there, inform your mother, and then come back. I'll wait for you. Mr. Lamb is telling कि तुम जाके अपनी मदर को इन्फॉर्म करके आ जाओ, फिर ठीक है, तुम फिर आकर मेरा हेल्प कर दो.
तो बोलता कि बट इट इज 3 miles away, इट्स लाइक 5 kilometers फ्रॉम हियर। बोला कि यार तुम 14 ईयर के हो, यू हैव गॉट 2 legs, यू कैन रन, दौड़, बन जाओ मिल्खा सिंह, दौड़ के जाओ, कि दौड़ के जाओ और इन्फॉर्म करके आ जाओ। But Derry is again making an excuse. He's telling कि maybe he's not making an excuse. Maybe that's the reality. He's telling कि अगर मैं घर जाऊंगा तो then they will not let me come. वो लोग मुझे आने ही नहीं देंगे। फिर बोलेंगे नहीं जाना है। You know, Indian parents again कुछ भी बोलो नहीं, ठीक है। So he like कि नहीं आने देंगे मुझे। His parents are also like our parents only. Mr. Lamb is like यार तुम झूठ बोला, तुम excuse बना रहे, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस आना नहीं चाहता है। Derry gets angry, you know, 14 ईयर बच्चे को चैलेंज करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। बोला नहीं, कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, you know, मैं आ सकता हूँ, देखना मैं आऊंगा, अब तो देखो तुम, मैं कैसे भी आऊंगा, ठीक है, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। And Mr. Lamb, of course I don't know you a lot, no, it's your life, तुम डिसाइड करो कि आना है या नहीं या आना है। And then he goes, वो वहां से चला जाता है, डेरी वहां से चला जाता है। Now what we see, there is a very, very interesting thing. You will see on the, I think, second last page of the story. Second or third last page. कि Mr. Lamb shows some pessimism. This is very, very interesting. Mr. Lamb shows some pessimism. थोड़ा सा negativity, थोड़ा सा disappointment वो दिखाते हैं। वो वाला पार्ट पढ़ लेना तुम, जब डेरी चला जाता है तो वो बोलते हैं कि no, I know that you are not going to come back. You all are like that. You all kids are, everyone is like that. They come and visit me. ठीक है, एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, बस उसके बाद वो आना नहीं चाहते, वो लोग नहीं आते। देखो अभी तक क्या था, हमने पॉजिटिव साइड देखा था मिस्टर लैम का, अभी हम उनका थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी देख रहे हैं। उनका भी एक्सपीरियंस शायद बहुत अच्छा दुनिया के साथ नहीं रहा, बट देन आल्सो ही स्टार्ट टू मेक हिमसेल्फ पॉजिटिव, बट थोड़ा सा वो जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा सा बाहर हमको दिख रहा है। आफ्टर डेरी लिव्स, जब डेरी चला जाता है, बोला कि नो आई विल गो and tell my mother and then I will come back, तो ये बोलते कि no, I know that you are not going to come back. Everybody is like that, they come but they never, and once they leave they never come back. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था सीबीएसई में, सो प्लीज इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ देना। आई टोल्ड यू कि व्हाट हैज हैपेंड, कि उस पार्ट में तुमको नेगेटिविटी दिखेगा, पेसिमिज्म दिखेगा, ठीक है, बस। बट एक बार खुद से सेल्फ रीडिंग कर लेना। नाउ बिफोर डेरी लिव्स, नो देयर हैज बीन मोर कन्वर्सेशन, ठीक है। एंड what Mr. Lamb is trying to tell, that you are 14-year-old child. अगर तुम 1 घंटे के लिए कहीं जाना चाहो, किसी से मिलना चाहो, so it should be your decision. You know, you don't need to be dependent on that. You don't need to ask anyone for that. No, you are old enough to make some of decisions by yourself. Like with whom you want to, with whom you want to, be friends. That should be your decision. With whom you want to spend your time, that should be your decision. Which game you want to play, that should be your decision. तो he trying to tell, Mr. Lamb is trying to tell कि तुमको खुद थोड़ा बहुत डिसीजन तो खुद से लेना चाहिए। For everything you should not be dependent on your parents, or you should not allow your parents to be dependent, to have that control reign on yourself, on you. I'll repeat again. He's trying that your parents should not have complete reign over you. Complete control नहीं होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तुम 14 ईयर के लिए थोड़ा बहुत डिसीजन तुमको खुद से लेना चाहिए। So he is encouraging him to become independent. Not in every area, but in fact, not in everything, but in some things. कि कुछ चीजें तो तुम खुद से करो, खुद से डिसाइड करो। And I also believe this, कि हमारे यहाँ इंडियन पर तुम देखे होगे, इंडिया में क्या हुआ है, तुम साइंस का एरिया देख लो, तो लास्ट टाइम कब नोबेल प्राइज आया था, लास्ट टाइम कब हम इंडियंस ने कुछ नया इनोवेट किया था, आज तक पता नहीं लास्ट टाइम कब नोबेल प्राइज साइंस में मिला था, मुझे तो याद भी नहीं कि कब मिला था। हाँ, पीस नोबेल प्राइज मिलता है, बट साइंस से रिलेटेड पता नहीं कितना साल हो गया। होता है क्योंकि कि हमें क्या होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आवर इनोवेशन इज किल्ड, आवर इंडिपेंडेंट थिंकिंग फैकल्टी इज किल्ड। शुरू से क्या होता है, बोला जाता है कि नहीं, हम जो बोलेंगे वही करना। नो, जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनफैक्ट जब हम इवन इफ यू आर 25 years old, 26 years old, बहुत सारा डिसीजन हम खुद नहीं लेते। Our parents take that decision for you. हम लोग मतलब वो रिस्क जो होता है ना, रिस्क वाला चीज नहीं करते, हम लोग खुद से कुछ नया नहीं कर सकते। एंड द सेम थिंग इज देयर विथ, दिस इज व्हाट मिस्टर लैम इज अगेंस्ट, कि नहीं, तुमको अभी से ही ना अपना डिसीजन लेना सीखना चाहिए, कुछ नया रिस्क लेना सीखना चाहिए, कुछ नया
इवन ट्राई करने का सीखना चाहिए. सो ही encourages him to do so, कि तुम अपना डिसीजन खुद लो. ठीक है, तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको क्या चाहिए, क्या पसंद है. डैडी बोलता मुझे तो खुद नहीं पता यार कि क्या पसंद है, हर चीज तो मेरी मम्मी डिसाइड करती. बोला कि स्टॉप डूइंग दैट. यू वेट, यू लिसन, यू वॉच, और तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या क्या चीज पसंद है. ये तुम डिसाइड करो. ठीक है, बट कैसे डिसाइड करोगे? व्हेन यू विल हैव एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस करो, हर चीज का एक्सपीरियंस करो. बट एक्सपीरियंस कब होगा? जब तुम खुद से चीजें करना शुरू करोगे. फिर तुम 5 चीजें ऑब्जर्व करोगे तो होगा, तुमको क्या रियलाइज होगा कि 2 चीजें तुमको पसंद है, 3 चीजें पसंद नहीं है. बट जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुमको समझ में नहीं आए. सो दिस इज व्हाट मिस्टर लैम एनकरेजेस है कि टेक अ स्टैंड, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, टेक रिस्क्स एंड बी इंडिपेंडेंट. डोंट बी डिपेंडेंट फॉर एवरी स्मॉल थिंग ऑन योर पेरेंट्स. यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस. और इसके बाद क्या होता है? डेरी वहां से जाने से पहले क्या बोलता है कि नहीं नहीं तुम, लास्ट प्रोटेस्ट होता है ना, अगर हमको कोई चेंज करना हो तो हम एक बार लास्ट प्रोटेस्ट करते हैं. स्कूल में भी पेरेंट्स के साथ भी, अगर तुम कुछ और बोल रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, तो तुम एक बार लास्ट प्रोटेस्ट करते हो कि नहीं ये चीज मेरे को नहीं करना. ठीक. सिमिलरली मिस्टर लैम हैज ट्राइड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डेरी, एंड डेरी इज इम्प्रेस्ड, रियली डेरी इज रियली इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम. बट उसको लास्ट प्रोटेस्ट करता, नहीं तुम झूठे आदमी, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो. कि तुम भी बाकियों की तरह, तुम भी क्या हो, मेरी तरह डर गए हो. बाकियों की तरह तुम भी डरते हो मेरे से, मेरा फेस देख के. तुम बस शो नहीं करो बट तुम भी डरते हो. एंड मिस्टर लैम्ब डजंट रिप्लाई. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. व्हाई डज मिस्टर लैम्ब नॉट रिप्लाई? इतना एक्यूज करता उनको डेरी, उनको इतना एलिगेंसेस लगाता दैट यू आर लाइंग, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, you are a lonely old man, you are a very peculiar man, very strange man, I don't trust you, I don't believe on you. And Mr. Lamb doesn't reply. Why he doesn't reply? This is very very important. He doesn't reply because he wants Derry to decide this by himself. वो चाहते हैं कि डेरी खुद से डिसाइड करे whether I'm a good person or bad person, whether he wants to spend time with him or not. It should be the decision of Derry. तो अपना केस प्रेजेंट नहीं करे कि मैं झूठ नहीं बोला, बोले कि तुम खुद डिसाइड कर लो. वो इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहे, तुम खुद डिसाइड कर लो कि आई एम लाइंग, आई एम अफ्रेड ऑफ योर फेस और नॉट. तुम खुद डिसाइड करो. ओके, एंड ही लिव्स. मिस्टर लैम क्या होते हैं, वो एप्पल तोड़ने चले जाते हैं. डेरी बोलता है नो नो. फिर अपने अपने से बोलता है, उनको सामने नहीं बोलता, खुद से बोलता है कि नो नो, यू आर नॉट लाइक, यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, you are different. Now why he calls Mr. Lamb different, that's very important. See, till now what has seen that people have taken pity on him. लोग उसका फेस देख के कमेंट करते थे या उसको मोटिवेट करने का फेरी टेल का एग्जांपल देते थे कि स्टोरी में ऐसा हुआ था, स्टोरी में ऐसा हुआ था, इट डजंट मैटर, people, some people have commented very very stupidly. But this person has told कि no, तुम्हारा फेस तो अगली है, मैं मानता हूँ कि that part has been burnt and that part is ugly. बट ही हैज टोल्ड कि सिर्फ फेस ही एक पार्ट ही तुम्हारा जला हुआ, बाकी पार्ट तो ठीक है यार, तुम बाकी पार्ट पे फोकस करो, बाकी जगह फोकस करो. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा ठीक है, इसको इग्नोर करो. कि टेलिंग कि हाँ ये है, ये हमेशा रहने वाला है, बट देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ आल्सो. ओनली अ पार्ट ऑफ योर फेस हैज बीन बर्न, द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, एकदम सही. तो तुम उस पर भी फोकस करो, उसको यूटिलाइज करो ना. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू कि जब डेरी चला जाता है तो मिस्टर लैम्ब शो सम नेगेटिविटी. वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आएगा, मुझे पता ये नहीं आएगा, सब ऐसे ही करते हैं. तो थोड़ा सा वो भी, उनका भी एक्सपीरियंस शायद बहुत अच्छा नहीं रहा है दुनिया के साथ. ठीक है. नाउ दिस वाज एंटायर सीन 1. जितना भी डिस्कशन हुआ, व्हाट वी हैव सीन दैट इट वाज इन सीन 1. नाउ सीन 2 इज एट द हाउस ऑफ डेरी. रिमेंबर ही हैज गॉन टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर. And he tells that he is going back. He's going to meet Mr. Lamb. He's going to help him in plucking apples. And his mother is like, no, you don't have to go. You are not going there. She's very strict that no, you cannot go. She's showing authority that no, you cannot go. Nahi jana tumko. And she's telling that don't you think that I know about him? I have heard many things about him. Now this is very very important. Actually they have settled like 2 or 3 months only back only there. And his mother is telling कि मैंने उस आदमी के बारे में बहुत सुना है. तो और जैसे वो बता रही, इट सीम्स दैट शी डजंट हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब. ठीक है. तो ये द इंप्रेशन ऑफ मिस्टर लैम्ब टू डेरीज मदर इज नॉट वेरी गुड.
She doesn't think that he's a good person. And there is okay. So what he's telling, there is mother like, no, I have heard many things about him, and the things that she has heard are most likely not good things. So she's telling that no, you don't have to go there. तुमको नहीं जाना वहाँ पे. And she's like very very authoritative in her tone कि नहीं जाना. But there is like, now look what there is. Derry tells her, you should not believe everything that people say. He's telling this to his mother, that you should not believe everything that other people say. Now, this is very very interesting because the same thing was told to him by Mr. Lam. कि जरूरी नहीं कि जो लोग तुमको बोलते हैं वो हर चीजों पे क्या करो, तुम विश्वास ही कर लो. You don't need to trust, you don't need to believe everything what other people say. तुमको हर चीज पे बिलीव करने का जरूरत नहीं है. So what we see कि there has been change in his attitude. मिस्टर लेम उसको जो सिखाना चाहते थे वो शायद थोड़ा बहुत सीख गया. वो अपनी मदर को वही जो लेसन वो मिस्टर लेम से सीखा है, द सेम लेसन ही इज पासिंग टू हिज मदर. कि आपने उससे मिला नहीं है कभी, आपने उनसे बात नहीं किया उस आदमी से, एंड देन आल्सो यू आर जजिंग. यू शुड नॉट डू दैट. नो, यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग व्हाट पीपल से. एंड ही टेलिंग दैट आई हेट दिस हाउस, आई हैव टू गो. मैं अभी जाऊंगा, मुझे नफरत है इस घर से. जब देखो लोग मेरे को डिमोटिवेट करते हैं. एंड हिज मदर लाइक, यू हेट दिस हाउस, यू हेट अस. कोई नहीं, वी विल फॉरगिव यू. I know that you are telling this because of your face. And he gets very angry. Not everything is about my face. Why you guys connect everything with my face? It has nothing to do with my face. I hate you guys. I hate this house because, you guys have never motivated me. You guys always think that, you guys always look at me with pity. जैसे मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता. Actually होता क्या था, सेम चीज होता था. हमेशा उसके घर में यही लोग बात करते रहते थे कि नहीं क्या करेगा ये, फ्यूचर में कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा. मतलब ये नहीं बोले कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ फेस जला ना, बाकी तुम तो कर ही सकता है, जो चाहे वो कर सकता है. नो. तो ही इज टेलिंग दैट आई हेट इट हियर, आई डोंट लाइक टू स्टे हियर. जब देखो मेरे बारे में बात होते रहता है कि मेरा फ्यूचर बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड हिज मदर थिंक्स कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका फेस जला हुआ है. देन ही गेट्स मोर एंग्री कि हर चीज, व्हाई एवरीथिंग इज अबाउट माय फेस ओनली. हर चीज फेस के बारे में ही क्यों है मेरे. इट्स नॉट अबाउट फेस. एंड ही स्टॉर्म्स आउट. वहां से क्या होता है, दौड़ के वहां से निकल जाता है. Now the scene changes again, and again he goes to Mr. Lam's garden. Mr. Lam के गार्डन में जाता है और Mr. Lam क्या कर रहे हैं, he's plucking apples. और he enters to the Derry enters to the main gate and he's plucking apples and he's shouting. वो चिल्ला रहा है कि I have arrived, see I have come. और फिर अचानक से क्या होता है, जैसे ही वो एंटर कर रहा होता है, the ladder crashes. जो ladder क्या होता है, it crashes and it falls down. And who falls down along with him, along with the ladder? Mr. Lam also. Derry opens the gate and he shouts, he enters and he goes near Mr. Lam and says, it's fine, everything is fine. But when he sees him, he realizes that no, Mr. Lam has died. Mr. Lam का क्या हो गया, death हो गया. And the story ends. The story ends on a very very negative note. You can एक question भी आता है CBSE में, suppose if you have to change the ending of the story, would you like to change? So you can, writer could have, ended this on positive note also, but he has chosen to end it with Mr. Lam's death. But before Mr. Lam has died, what he has done, he had changed the life of Derry. Before his death, उन्होंने क्या किया है, उसको पॉजिटिव बना दिया. And this is something that we can learn. अगर किसी से भी मिलते हैं ना, उसके लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करो. मतलब ऐसे टच करो उसके लाइफ को कि वो मतलब जब भी याद करे तुमको अच्छे के लिए याद करे. And Mr. Lam is one such person. जिससे भी मिलते हैं, he brings that positive energy to their life. So this is one thing that we can learn. And what is important, that before his death, thankfully, he had changed the attitude of Derry. उन्होंने क्या किया, Derry का attitude change कर दिया. Now, there are many questions that we need to understand. कि why, Derry liked Mr. Lam? Why he was attracted to him? So the reason was that both of them shared something. They have something in common. Can you guess what is that common?
It's that both of them have some sort of physical disability. डेरी का फेस जला हुआ है, मिस्टर लैम का पैर नहीं है. And unlike other people, Mr. Lamb doesn't treat, Derry with pity. वो हमेशा उसको नहीं, अरे यार इसका तो फेस ही खराब हो गया, क्या करेगा. He is not like that. He like कि हाँ फेस खराब है, मुझे दिख रहा है कि फेस खराब है, but बाकी बॉडी पार्ट सही है. He talks very differently than other people. No, he doesn't. अगर तुम पे बार बार कोई पिटी दिखाए, दया दिखाए, तो तुमको भी अजीब सा लगेगा, यार ठीक हूं ना मैं, इतना भी बुरा लाइफ नहीं है मेरा. So Mr. Lamb doesn't show any pity. He tells कि हाँ फेस जला, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है. बट ये सोचो कि तुम्हारा बाकी बॉडी पार्ट सही है, तुम उसको यूटिलाइज करो. इसीलिए क्या होता है, डेरी उससे अट्रैक्टेड. बोथ ऑफ देम हैव समथिंग इन कॉमन. और वो उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्लस पीटी शो नहीं करता, दया नहीं दिखाता, अरे यार तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं. बाकी लोगों की तरफ फेरी टेल का एग्जाम्पल देके वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करता. एंड ही इज ट्राइंग टू टेल दैट देयर कैन बी मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. मतलब अगर सपोज करो तुम्हारे हमारे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है. सपोज करो इफ देयर इज अ चाइल्ड हु इज ब्लाइंड, so we should understand that he is only blind. He has got a mind working, he has got his legs, he has got his hands, he has got ears, he can do other things. देखने के अलावा और भी तो लाइफ में चीजें होता है जो हम कर सकते हैं, तो he can do that. तो we have other aspect. हमारे लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो remember, the world is not beautiful, it is not always beautiful. The world is both ugly and beautiful. हम पे डिपेंड करता है कि हम किस साइड देख रहे हैं. अगर हम अगली साइड देखेंगे तो हमको तो दुनिया अगली ही दिखेगी. अगर हम ब्यूटीफुल वाले साइड में देखेंगे हमको ब्यूटीफुल दिखेगी. So it's a combination of both. Sometimes bad things will happen, but we need to understand that good things are also going to happen. So we don't need to demotivate ourselves कि नहीं लाइफ बर्बाद हो गया, खराब हो गया. And we can learn many lessons from Mr. Lamb. So let's look at their characteristics first. Qualities देखते हैं कि मिस्टर लैम का क्या क्वालिटी है, डेरी का क्या. तो मिस्टर लैम इज फ्रेंडली, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक. रिमेंबर ही ऑलवेज कीप्स हिज गेट ओपन. कि कोई भी आ जाए यार, सब मेरे फ्रेंड हो. रिमेंबर इस कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड्स कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है तो वो तुम्हारा दोस्त है. एंड व्हेन, अच्छा आई मिस्ड वन पॉइंट, व्हेन डेरी सेज दैट ही हेट्स पीपल, मिस्टर लैम ने एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया है. क्या स्टेटमेंट है कि दिस इज गोइंग टू हर्ट यू मोर देन एन एसिड. ये जो तुम हेट्रेड कैरी कर रहे हो, इट इज गोइंग टू हर्ट यू मोर. व्हेन ही टेल्स ना दैट ही हेट्स पीपल, डेरी बोलता है कि मुझे लोगों से नफरत है. ही लाइक ये डोंट कैरी दिस हेट्रेड. नो, देयर इज अ वेरी पावरफुल कोटेशन कि हेट्रेड इज लाइक एसिड which destroys the vessel in which it is kept. जैसे एसिड को अगर तुम किसी बर्तन में रखो तो क्या करेगा, उसी को वो खराब करने लगता है. Hatred is like that. If we are carrying hatred in our heart, it is going to ruin us. हम ही को बर्बाद कर देगा, हम ही को खा जाएगा वो ऐसे. तो मिस्टर लैम वही समझाने की कोशिश की, डोंट कैरी हेट्रेड. नफरत मत करो, ये तुम्ही को नुकसान पहुंचाएगा. तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहेगा. तुम फिर कभी किसी में अच्छा नहीं देख पाओगे if you will keep that hatred in you. And we know that he keeps his windows and gates open कि जिसको आना है आ जाओ. He is very peculiar according to Derry because till now people have shown pity, people have shown sympathy, people have given example of fairy tales. This guy Mr. Lamb, no, कोई pity नहीं. ठीक है तुम्हारा फेस जला हुआ देख रहा हूँ मैं, but बाकी बॉडी पार्ट सही है, उसको यूटिलाइज करो. And to avoid his loneliness he keeps himself busy. How he keeps himself busy? He talks with people, he interacts with people, he plays, he goes out, he hangs out in his garden, he hears the singing of the bees, he makes jelly, he makes toffee. So this is how he keeps himself busy. यानी कि सोच के देवदास बने हुए कि मेरे लाइफ में तो कोई नहीं है, मैं बहुत बोरिंग लाइफ है. नो, he doesn't like it. He keeps himself busy. No, he is living a constructive life. ऐसा नहीं कि फालतू में लाइफ ऐसे बेकार कर. And at the end he changed Derry. He helped Derry to change his outlook. उसका बहुत हेल्प किए थे और हमने देखा कि लास्ट में क्या हो गया, उसका आउटलुक कंप्लीटली चेंज हो गया था. So these are the qualities of Mr. Lam. Let's talk about Derry. In the beginning he is very pessimistic, very negative. उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता. और now the question is कि is he solely responsible for this? The answer is no. He has developed this attitude because of the people around him. वो लोगों की वजह से, लोगों ने उसके फैमिली की वजह से, लोगों की वजह से उसका एटीट्यूड वैसा हुआ. बिकॉज
किसी ने उसको ढंग से मोटिवेट किया ही नहीं, किसी ने ये बोला ही नहीं कि हाँ तुम्हारा फेस ऐसे ही रहने वाला लाइफ टाइम के लिए, बट बाकी बॉडी पार्ट तुम्हारा सही है, उस पर फोकस करो, किसी ने वो नहीं बोला था। और लोगों ने ऐसा ऐसा कमेंट किया था, रिमेंबर दैट वुमन, शी हैज टोल्ड कि ऐसे फेस को तो सिर्फ इसकी मदर प्यार कर सकती है। तो he has developed this attitude because of the surrounding and because of the people whom he have met, and he had a very very low morale। मतलब नहीं होता एक enthusiasm लाइफ को लेके, एक zest, एक energy, कि okay life is beautiful, no, he doesn't have that kind of energy, that kind of attitude। And in the beginning he used to avoid people, he thought if he will meet people, he will interact with people, they are going to comment on him, they are going to find him ugly, they are going to get afraid of him। But later what happened, he changed। उसके बाद क्या हुआ, वो चेंज हो गया। So this is the entire story, and we saw that Mr. Lamb helped Derry। Why he helped, तुम समझ सकते हो, because he also suffered from the same kind of problem, he was also suffering from physical disability, and he has also faced the comments of people। Remember kids used to tease him, Lemmy Lamb। तो वो yeah, so Mr. Lamb helps Derry because he finds that he is facing the same problem that he has faced। Mr. Lamb भी same problem face किए थे, ठीक है, लोग उनको टीज करते थे और उनको लगा कि यार मतलब ये बंदा सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो ही डिसाइडेड कि ही विल हेल्प। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड a self assessment test in the link in the description below, you can check, you can do a test, but ensure that you have seen both the videos। एक बार दोनों वीडियो देख लोगे, फिर कोई भी क्वेश्चन तुम उठा के देख लो सीबीएसई का, या कोई कहीं से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से, यू विल बी एबल टू डू इट, both the value based questions as well as short answer type questions, you will be able to do both of this, but you need to make sure that you have seen both the videos, okay? So that will be all for today, we will meet again in the next class, next session, till then, bye bye।